Assalamu alaikum student, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss about level science. This is our online lecture. Kindly subscribe our lecture of Central Public School and press the bell icon. So student, we are going to start unit number 3, a new online lecture. This lecture is about transport system in plants and the animals. Have you very well know about in every living organism here is a system which can help to transport the blood and the liquid fluid from one part of the body to another part of the body. If we discuss animal, here is the well-developed heart system. This heart system is known as the circulatory system. अगर आप ये तस्वीर देखें, look at this picture. This is the heart. This is the yellow vessel is called the vein, and the red vessel is called the arteries. The human heart is consist on the blood vessels. The blood vessels is the major transport system. This transport system consists on two large vessels and one small vessels. The large vessels is arteries and veins, and the small vessel, the hair-like vessels which are originated from the heart, is called the capillary. So we discuss over this chapter by the reference of the book, page number 19. This is the book page number 19. Our major topic, the transport system in plants and the animals. First we discuss the transport system in animals. The animals transport system is consist on the human heart. The heart is a muscular pump. अगर आप अपने लेफ्ट साइड पर अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखें तो आपको वहां पर एक बीटिंग फील होगी, बीटिंग सुनाई देगी. वो बीटिंग सिस्टम कंसिस्ट करता है आपके हार्ट पर. सो व्हाट इट बीट? द बीट इज योर हार्ट. यूजुअली स्टूडेंट, द साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज लाइक अ फिस्ट. एक फिस्ट की तरह ह्यूमन हार्ट का जो है वो साइज है. एंड द ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्ट ऑन अ ब्लड वेसल. This blood vessel system depend upon a major circulatory system. These circulatory system responsible to transport any type of the material in any part of the body by the help of the blood vessels. If we study this chapter, we will first discuss that blood vessels. It push the blood around the body through the tube. अगर हमने ब्लड जो है हमारा जो सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, वो एक मेजर वेसल्स के जरिए कर रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स. Arteries and are blood vessels that carry blood away from the heart. Look at this picture. Here are three major blood vessels. The first is the large blood vessel is arteries. The second one is the vein, and a very small hair-like vessels originated from the heart. These are called the capillaries. So first of all, arteries. Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. So arteries का क्या काम है? ये blood को क्या करती हैं? ये जो red vessels आपको नजर आ रही हैं, these all are the arteries. ये हार्टिंग ब्लड, हार्ट जब पंप कर रहा होगा तो उसकी पंपिंग के जरिए ये ब्लड जो है हार्ट से दूसरे ऑर्गन की तरफ क्या करेगा? लेकर जाएगा. दे हैव थिक मस्कुलर वॉल. हार्ट के एक बहुत ही मोटी मस्कुलर वॉल होती है टू विथस्टैंड द हाई ब्लड प्रेशर ऑफ द ब्लड, जो ब्लड के प्रेशर को क्या करती है? कंट्रोल करने की कोशिश करती है एट द टाइम ऑफ द बीटिंग. दे यूजुअली लाई डीपली एम्बेडेड इनसाइड द बॉडी, क्योंकि ये वेसल जो हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, ये हमारी हार्ट की पूरे हार्ट के अंदर क्या कर रही होती हैं? सर्कुलेट कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं और ब्लड को एक पार्ट से दूसरी जगह पहुंचाती हैं. Arteries divided into two small thin walled vessels called capillaries. Arteries जिन small thin walled vessels के अंदर divide होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं? capillaries कहते हैं. Capillaries penetrate into all tissues of the body. ये तमाम टिश्यू तक पहुंचते हैं. The transfer of the food, gases and excretory material between the blood and the cell take place by diffusion through the thin capillary walls. और जो हमारे पास फूड है, जो नंबर ऑफ द गैसेस हैं, वो किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट कर रही हैं? वो हमारे पास कैपिलरी वॉल्स की मदद से क्या कर रही हैं? पूरे के पूरे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रही हैं. इज दैट क्लियर?
सो स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन में अगर हम बात करते हैं तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वो सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है? वो हमारा ह्यूमन हार्ट है। अगर आप ह्यूमन हार्ट की पिक्चर देखें तो ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट विच आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, ये ह्यूमन हार्ट इस तरह के पूरे नेटवर्क, वेसल्स की नेटवर्क को आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है? स्प्रेड करता है, फैलाता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन कर सके? ये ब्लड कर सके। आप जो कुछ खाते हैं, इट डजंट मीन वो ऐसे ही हार्ट जो है वो रिजॉल्व करता है। नो, जो चीज हम खाते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वो तमाम चीजें हमारे पास ब्लड के अंदर क्या हो जाती हैं? अकोमुलेट हो जाती हैं, एंटर हो जाती हैं, और उसके बाद ब्लड जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन तमाम चीजों को क्या करता है? पूरे जिस्म के अंदर बाय द हेल्प ऑफ द वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज की मदद से सर्कुलेट करता है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन। जब ये छोटी छोटी कैपिलरीज आपस में इकट्ठा होती हैं तो ये क्या करती हैं? ज्वाइन करके वेन बनाती है, विच रिटर्न द ब्लड टू दी हार्ट। और इनका काम क्या है कि ब्लड को वापस कहां से लेकर आना? हार्ट में। सबसे फर्स्ट फंक्शन हमने डिस्कस किया था आर्टरीज, द फर्स्ट ब्लड वेसल, द थिक ब्लड वेसल। इसका काम क्या था कि जितना भी हार्ट के पास ब्लड है एट द टाइम ऑफ पंपिंग, जो 24 आवर हमारा हार्ट पंप कर रहा है, वो उस ब्लड को बॉडी में लेके जाएगा, और उसके बाद वेन्स आपस में ज्वाइन होकर, कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होकर वेन्स की मदद से जितना भी ब्लड है वो हार्ट में क्या करके आएंगी? रिटर्न लेकर आएंगी। वेन्स आर वाइडर देन आर्टरीज। वेन्स क्या होती हैं? ज्यादा वाइडर होती हैं, चौड़ी होती हैं। किससे? आर्टरीज से। एंड हैव थिनर वॉल, लेकिन उनकी वॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। So veins are wider than the arteries and have thinner walls. They have valves to make sure that the blood flow in a one direction only. उनके पास एक valves होती है जिससे वो इस बात की श्योरिटी करते हैं, इंश्योर करते हैं that the blood flow in one direction, कि blood एक डायरेक्शन में क्या करता है? फ्लो करता है। The blood pressure in a vein is usually low. If we contrast the difference between the arteries and the vein, the biggest difference is that the arteries withstand the high blood pressure of the blood, and the veins usually have a low blood pressure. So these veins and the arteries are the main circulatory system. ब्लड की पंपिंग के लिए अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो जो मेन वर्क है आर्टरीज का, इट कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम दी हार्ट। ये प्योर ब्लड लेके जाती है हार्ट से। बट अगर हम वेन को देखें तो वेन जो है इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट में लेकर आती है। सो दिस आर मेजर डिफरेंस एंड दीज आर द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द नेक्स्ट इज द हार्ट। योर हार्ट इज अ साइज ऑफ योर क्लेंच फिस्ट। आपकी मुट्ठी की तरह जो है आपके हार्ट का साइज है। इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल। कार्डिक कहते हैं हार्ट को, तो हार्ट मसल्स को हम साइंटिफिक नेम देते हैं कार्डिक मसल्स। इट फंक्शन इज टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या है कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना है, ब्लड को सर्कुलेट करना है, और ये सर्कुलेशन डिपेंड करती है, हम फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। दी सर्कुलेशन इज डिपेंड अपॉन दी ब्लड वेसल्स विच आर द ट्यूब्स which are totally spread in our body. The heart has 4 compartments. These compartments is called the chambers. 4 chambers, 4 parts होते हैं, 4 हिस्से होते हैं. The 2 upper chambers are called arteries, arteria, and the 2 lower chambers are called the ventricles. So student, look at this picture. You can clearly understand what is the arteria. If we see, this is the arteries. These 2 part is the arteries, this is the veins. It's mean blood यहाँ से जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके जो है आपके पास राइट साइड से वो वेन में आ जाएगा. बट इन दिस arteries and the vein, here is the arteria. The 2 upper section of the heart is called the arteria, and the 2 lower section is called the ventricles. So this is the structure about the human heart, which are the main circulatory system. I hope you understand about the human heart, the transport system in the human. Thank you so much.